اللہ. السلام علیکم, میں ہوں ہنا الطاف اور میرے ساتھ ہیں میرے بڑے بھائی علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بران رحمت السلام علیکم حسان بھائی, السلام علیکم شہری بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میری جانب سے بھی آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بران رحمت میں آج چھٹا روزہ ہم نے اختیار کیا ہے, یعنی کہ 8 اپریل 2022 1443 سن ہجری. اور علی بھائی مائک. آج باران رحمت میں رحمتیں تو برس رہی ہیں لیکن آڈیو تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گئی, کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو بھی روزہ لگ گیا ہے تھوڑا سا. ایک بار پھر السلام علیکم. چھٹا روزہ ہم نے اختیار کیا ہے آج, یعنی کہ 8 اپریل 2022 1443 سن ہجری. اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی تھی قاری نعمان حسین نے, اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے حسان بن خورشید اور شہری رضا نے. ماشاء اللہ. علی بھائی, میں سوچ رہی تھی کہ رمضان اور اسلام, دین اسلام ان اٹ سیلف ہمیں کتنی ساری چیزیں سکھاتا ہے. جیسے فجر آپ فجر کے وقت میں ہی پڑھیں گے, ظہر آپ ظہر کے وقت میں ہی پڑھیں گے, تو نمازوں کا اپنا اپنا وقت ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ دین اسلام آپ کو ڈسپلن کتنی سکھاتا ہے کہ جو جس چیز کا وقت ہے آپ نے اسی وقت پہ ہی وہ چیز کرنی ہے. فار ایگزامپل سائنس نے چیز پروف کی کہ اگر آپ مغرب کے بعد کھانا نہ کھائیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بڑا مفید ہے, تو اس کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. پھر دین اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ آپ کے رشتہ دار, آپ کے گھر والے, آپ کے پڑوسی آپ کے لیے کتنے اہم ہیں, جو کل کا بھی ہمارا ٹاپک رہا ہے اور جس پہ ہماری ڈسکشنز رہی ہیں کہ آپ گھر والوں کو کسی بھی پوائنٹ پہ چھوڑ نہیں سکتے, اپنے پڑوسیوں کو آپ پوچھنا نہیں بھول سکتے, رشتہ داروں کو پوچھنا نہیں بھول سکتے. تو بڑی رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے مسلم. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بھی ذمہ داریوں کے اوپر. بے شک جی, ذمہ داریاں یقیناً. آپ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کون سا انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر احساس سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ رشتوں میں ہے یقیناً, آپ اس میں والدین بھی ہیں, اس میں پڑوسی بھی ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہیں, عزیز و اقارب ہیں, بالکل آپ کے کولیگز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. تو یہ ذمہ داری کا احساس ہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی زندگی بہتر بنا سکتا ہے. اور آپ کسی کو جو ہے اگر تسلی کے 2 بول دیتے ہیں, کبھی کبھی کتنا یہ ضروری ہوتا ہے. بالکل کوئی کندھا آپ کو مل جائے اگر آپ کسی پریشانی میں ہوں, تو وہ اس وقت وہ کندھا جو ہے وہ بہت کام آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ خوشی میں نہیں مل پا رہے ہوتے, اگر آپ کسی کو بہت سارے دولت سے نہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں پاسبل ہے کہ مدد کر سکیں, بھائی اس کے غم میں, اس کے رونے میں شریک اگر آپ ہو جاتے ہیں, اس کا ساتھ دے دیتے ہیں, تو اس کے لیے اس وقت وہی بہت کافی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی چیز کے بارے میں آج ہم ٹرانسمیشن میں ڈسکشن بھی کریں گے اور گھر والوں کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے, کیونکہ ایک وقت ہم جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا کامن تھا ہماری سوسائٹی میں, لیکن جیسے جیسے اب وقت آگے جاتا جا رہا ہے تو علی بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ختم ہو رہا ہے. لوگوں کی جیسی شادیاں ہوتی ہیں لوگ الگ ہو جاتے ہیں. آئی تھنک یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ہے اب تو کافی سالوں سے ہو گیا ہے, اور لیکن اس کے بعد بھی اگر لوگ ان رشتوں کو قائم رکھتے ہیں, جیسے اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے, اگر آپ الگ بھی گھر لے لیتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے والدین کا, آپ کو اپنے بہن بھائیوں کا, اگر آپ کو اپنے پڑوسیوں کا, اگر جو بھی آپ کے دوست یار ہیں ان سے آپ تعلق رکھتے ہیں, قطع تعلق نہیں رکھتے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اب یہ بحث تو ایک بہت لمبی ہو گئی ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے, وہ پہلے فیملی سسٹم اچھا تھا یا نہیں تھا. بہرحال اس پہ ہم پیش کیا. ماشاءاللہ. اچھا علی بھائی, جب میں سن رہی تھی نا کہ آؤ مدینے چلیں, اسی مہینے چلیں, تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اس وقت کتنے سارے مسلمان ہیں جو عمرہ کرنے گئے ہوئے ہوں گے. میرے اپنے بڑے بھائی ہیں علی بھائی, ان کا نام بھی علی سکندر ہے, تو وہ ابھی مدینہ میں ہی موجود ہیں ماشاءاللہ. اور میری کل جب ان سے بات ہو رہی تھی تو میری وہیں سے بات ہو رہی تھی, اور پھر پوری ان کی فیملی ماشاءاللہ گئی ہوئی ہے. تو کتنے سارے وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں وہاں پر موجود ہیں. تو اگر اس میں سے کوئی ایک شخص بھی ہمارا شو دیکھ رہا ہے, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں وہاں پہ عمرے کے لیے, اور پورا رمضان المبارک یقیناً رحمتوں کا عشرہ بھی ملے گا, مغفرت کا بھی ملے گا, بخشش کا بھی ملے گا, تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ برخوردار ہیں. زمان ذکی تاجی ماشاءاللہ بہت ہی فن قوالی میں ان کا بہت
नाम है, कंट्रीब्यूशन है। अभी 1 महीने पहले जो है वो इस दुनिया से रुखसत भी हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनकी रूह को जो है वो सुकून बख्शे, उनके गुनाह जो है उनको बख्शे और आप सबको सुकून अता फरमाए। और ये जो फ़न कवाली है इसको आप आगे इसी तरह, आपके तमाम ग्रुप माशाल्लाह से, वक्त कम था, थोड़ी सी तशनगी रह गई है, लेकिन ज़रूर आपसे आगे भी हम ज़रूर बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जो है जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। तो आज हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं। आज एक नई गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन इन किया है हमारे साथ। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ इरम ज़िया का, जो कि मोटिवेशनल और रिलीजियस स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फिर हमारे साथ हैं महक फातिमा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम महक, क्या हाल है आपके? रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ज़िम्मेदारियों के ऊपर है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियां बनती हैं अपने घर वालों की तरफ। घर वालों के अंदर शौहर भी है, बीवी भी है, बहन भी है, भाई भी हैं, वालिदैन भी हैं। और क्या हम घर वालों के अंदर उन लोगों को काउंट कर सकते हैं जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन वो हमारे घर में रहते हैं? क्या उनको काउंट कर सकते हैं? पहला सवाल मेरा ये। और दूसरा सवाल ये कि मकान को घर कैसे बनाया जाए, पहले मैं इरम ज़िया से पूछना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल वही है मेरे ख्याल से जिसे हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना वसी है अगर सच पूछो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनको अगर हम हुकूक का नाम दे दें ना, जब हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो जाहिर है घर में, जब हम घर ज़मीन पे इंसान की जन्नत है, वो सारी ज़िंदगी तकदो करता है इस जन्नत को बनाने के लिए, इसे सजाता है, संवारता है कि ये बाइस सुकून बने मेरे लिए, मुझसे जुड़े हुए हर रिश्ते के लिए। बिल्कुल। माँ बाप सोचते हैं हमारी औलाद के लिए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद सोचती है फिर हमारी औलाद के लिए, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो जन्नत है इसको वाकई जन्नत नज़ीर कैसे बनाया जाए, सवाल ये पैदा होता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम अल्लाह की रूह से देखें, कुरान से देखें, तो सबसे पहले जो हुकूक है वो माँ बाप के हैं कि सबसे ज़्यादा तकरीबन 15 मरतबा कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इस बात पे ज़ोर दिया कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि जब तुम छोटे से थे, तुम कुछ जानते नहीं थे, तुम कोई शऊर नहीं रखते थे, तुम्हारे हाथ पैर इस काबिल नहीं थे, वो तुम्हारे माँ बाप ही थे जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के तनावर दरख्त बना दिया। बेशक बेशक। वो वाली बात है ना कि छाँव में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, छाँव में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले। तो यहाँ पे जब औलाद ये भूल जाती है ना, तो बस फिर घर बिगाड़ का बायस बनने लगता है। अब घर में ज़हरे वालिदैन हैं तो उनका ख्याल रखिए, फिर आपकी बीवी है उसका ख्याल रखें, आपके बच्चे हैं उसका ख्याल रखें, भाई बहन है उसका ख्याल रखें। अब घर की डेफिनेशन क्या है? क्या घर सिर्फ वो है जो एक 4 दीवारी में है, या घराना घर है बिल्कुल, जिसमें आपके भाई बहन भी शामिल हैं, आपके बीवी के भाई बहन भी शामिल हैं, आपके वालिदैन भी शामिल हैं, बीवी के भी वालिदैन शामिल हैं। तो ये जो घराना है ना, ये दर हकीकत यहाँ जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। और जो दूसरा तुमने एडिशन किया था, जाहिर है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारे घर में, बेशक वो रहते नहीं हो, लेकिन एक मेड अगर सुबह से आती है और रात तक काम करती है, ड्राइवर सुबह से आते और रात तक काम करता है, उसके भी हुकूक हमारी तरफ निकलते हैं। हमें वो जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, उसके भी दुख सुख का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो अल्लाह ने मर्द को जो हैसियत दी है वो पूरी नहीं कर पाएगा। देखो, मर्द घर का सरबराह है। यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी अपने सारे भाइयों को कि अल्लाह ने आपको सरबराह बनाया है। अब उसको चाहिए कि सरबराही में सबके साथ इंसाफ करे, सारे रिश्ते को इतनी मोहब्बत और चाहत से लेके चले, और प्लीज़ अपने घर को बंटने ना दें। मियाँ बीवी ये कोशिश ज़रूर करें कि जो घराना है ना वो टूटे नहीं। जैसे दादा दादी अहम वैसे नाना नानी अहम, जैसे फूफी अहम वैसे खाला अहम, जैसे चचा अहम वैसे मामू अहम, क्योंकि घराना इन्हीं रिश्तों से बनता है। एक ननियाल एक ददियाल। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि कुछ घरों में समझा जाता है कि बस ददियाल है, अब लड़की आ गई, अब मैं से कोई ताल्लुक नहीं। इस सोच को तब्दील कर दें, क्योंकि माँ के बाद आपके घर को जन्नत आपकी बीवी ने बनाना है, और वो जितनी खुश होगी
आप यकीन माने उस पेड़ की मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जितनी उस जड़ की आबियारी करेंगे, जितना उसे पानी देंगे, वो आपके घर को उतना खुशनुमा बनाएगा। आप नहीं समझती कि अगर कोई अपनी ये एहसास ज़िम्मेदारी जो है कि अगर कोई बेटा है अपने वालिदैन के लिए, या अगर कोई भाई है अपनी बहनों के लिए, या इवन माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अगर वो ज़रूरियात, वो ज़िम्मेदारियाँ जो उन पे है, अगर वो उनको सही तरीके से पूरा नहीं करते, तो उनकी अपनी अहमियत में भी कमी नहीं आ जाती उन रिश्तों की नज़र में? अली, 2 जुमले यहाँ बोलूँगी, मेरे ख्याल से वो जवाब हो जाएगा कि आंसू पोंछने वाले जब आंसू देने का बायस बन जाएं तो समझ लेना कि रिश्ते की उम्र पूरी हो गई। तो ये सवाल का जवाब भी है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल नहीं रहे तो फिर आप कैसे कोई चीज़ क्लेम कर सकते हैं? और जब तक आप फ़र्ज़ पूरा नहीं करेंगे तो यकीन मानो आपको हक मांगने का कोई इख्तियार नहीं रहता। पहले फ़राइज़ पूरे करें, फिर हुकूक। महक साहिबा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मेंटल हेल्थ क्या है और मरीज को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे ज़रूरत है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, उसको कैसे मालूम होगा वो क्या सिम्टम्स हैं, ये क्या सिलसिला है? देखिए, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होता है ना, उसका मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब लाइफ का बैलेंस आउट होने लगे, आपके डे टू डे के काम करना मुश्किल हो जाए, आपके सोचें आ रही हैं पीछे और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक, तो दैट्स द साइन कि एक साइन है कि आपको किसी को दिखाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कोई स्ट्रेस आपके दिमाग में मुस्तकिल रह आप उसको हल नहीं कर पा रहे हो, तो जरूर के कोई डिसीजन पावर खत्म हो जाती है। बहुत सारे आप स्ट्रेस हो, आप डाउन हुए हुए हो, आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, बहुत छोटे छोटे साइंस हैं स्ट्रेस के, तो इसका मतलब है कि आपको किसी के पास जाना है अब। और आप जो हम सेगमेंट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो हमारे इस पूरे ट्रांसमिशन का वन ऑफ द मोस्ट अहम सेगमेंट है, क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड है, ये हमारी इफ्तार से रिलेटेड है, हम सब की इफ्तार से रिलेटेड है। तो जी हाँ, आज का तड़का शेफ गुलजार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। जुमा मुबारक आपको, रमजान मुबारक का पहला जुमा है। मेरे देखने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हेल्दी हो जाएं, थोड़ा सा एनर्जी लेकर आएँ। मेरे सेगमेंट को देखने के लिए थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा उठ खड़े हों, ठीक है? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, एनर्जी लो होता है, बिल्कुल दरमियाना टाइम है इस वक्त, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप एनर्जी के साथ रोज़ा रखें, अल्लाह ताला की इबादत भी करें, साथ साथ अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी। जी, ये हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसमें हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करेंगे, और साथ में आज हम आलू का पराठा जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। सुना है कि अली को पराठा पसंद है, आलू का पराठा नहीं सर, पराठे। अच्छा, पराठे पसंद। और इसके साथ जो है कटलस भी तैयार हो रहा है, चिकन एंड आलू का कटलस जो है वो शेफ, ये आप क्या सुना रहे हैं? आलू के पराठे, आलू के कटलेट, ये क्या हो रहा है शो पे? आलू और चिकन के कटलस भी हैं और समोसे भी फ्राई होने। बेहतरीन सर, बेहतरीन है जी। अब तो हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो तैयारी आप कर रहे हैं गुलजार भाई, बहुत ही हमारी खास तौर पे बाराने रहमत में। ये भी मैं एक नेकी का काम करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मुबारक में तो 70 से मल्टीप्लाई हो रही है आपकी, मुझे भी सब सवाब मिलेगा ना इस बात का अलग। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। आपके तो फैल हमें खाने को भी अच्छा मिलता है, बातें भी अच्छी मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन भी कितनी मिलती है। जी बेशक बेशक बेशक। तो अली भाई, हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे जी, तो मैं चाहूँगी कि हम वही डिस्कशन कंटिन्यू करें, क्योंकि उसके हवाले से अवेयरनेस देना ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम महक साहिबा से बात कर रहे थे रिश्तों के हवाले से भी, और मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या, लेकिन मैं सवाल को थोड़ा सा और आगे चाहता हूँ बढ़ाना। थोड़ी सी एज के अंदर वालिदैन जो है वो अक्सर लोग इस तरह की बात कभी कहते हैं कि वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, बहुत शदीद उनमें फ़र्क आता है वक्त के साथ साथ। तो बच्चों को किस तरह इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वालिदैन, अब हम भी तो बहुत छोटे थे ना, जब बहुत एक ही बात को बार बार पूछते थे, वो क्या चीज़ है, हम भी रोज़ बता देते, बेटा वो चांद है, तुम भी चांद हो, वो भी चांद है, 100 दफ़ा वही सवाल करते थे। अब अगर वालिदैन थोड़े से कभी भी चिड़चिड़े नहीं हुए, वो प्यार से ही आपसे बात करते थे, आज जब हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमारे वालिदैन को ज़रूरत है, तो हम उनको खुदा न खास्ता झड़क दें, तो ये इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चे किस तरह सीख सकते हैं इस बात को कि उनको जवाब नहीं देना है? देखिए, एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे माँ बाप ने आपका बचपन एंजॉय करा है, वैसे ही आप अपने माँ बाप की बुढ़ापे को एंजॉय करें।
कि वो एक एक चीज़ जैसे आपको सिखाना, एक एक चीज़ बताना, 10 दफ़ा आंसर करना, वो नहीं थकते थे जी। और बल्कि दूसरों को भी बताते थे कि मेरे बच्चे ने आज ये बोला है, हाँ, you know? हाँ। एक एंजॉयमेंट होती थी। हाँ। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप को कि एक फेज़ है लाइफ का जो गुजर जाता है, जी जी अगर हम सोचें कि हम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे तो फिर हम कभी भी नहीं झटकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम जवान हैं, हमारा भी बुढ़ापा आना है। यकीनन। बिल्कुल। और अगर हम अपने बच्चों के सामने झटकेंगे तो ऑब्वियसली वो बड़े होंगे हमें भी वैसे ही झटक रहे होंगे, अगर हम क्योंकि अपने मॉडलिंग बच्चों के होती है। सामने- जी, यस जी। कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएंगे कि अगर हम उनके सामने इतना बुरी तरह बात कर रहे हैं माँ बाप से, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ वो क्या करेंगे जब हमारा बुढ़ापा आएगा। तो मुझे तो लगता है वालिदैन को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, Yes. वो इतनी एक रूहानी सी शख्सियत होती है, इतना क्यूट से लगते हैं, कभी कभी वो थोड़ा भूल जाते हैं, ऐसे मुझे तो ही है। लगता है उनको उसी तरह दोस्त बन जाना चाहिए उनका। बिल्कुल। और